So it's a Valentine Day. तो ये वैलेंटाइन डे है। How many people received gifts today? और कितने लोगों को आज तोहफे मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं। But I just want to tell you there is someone who is ready to give you a gift, who's already given you a gift. और मैं लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोई एक है जो आपको वो तोहफा देने के लिए तैयार है और उसने आपको वो तोहफा दे चुका है। Let us just find about this person who he is. और आइए हम देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में, ये कौन है। Open with me Ephesians chapter 2 verse 4 to 8. मेरे साथ खोलिए इफिसियन उसका 2 इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसके 4 से लेकर 8 पद तक. Ephesians chapter 2. Let me read it in English and then we will be reading it in Hindi as well. But because of his great love for us. Hallelujah. I thought someone would shout hallelujah. Because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show us incorruptible riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved. मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा. I would like to read it again. It is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. आमीन. आमीन. दान लिख दिया, दान नहीं है, तोहफा है. It is not a charity he is talking about. He is not talking about charity. ये कोई दान के बारे में नहीं बात हो रही है. He is talking about gift. ये तोहफे के बारे में बात हो रही है. I mean, how difficult it is to receive a gift. कितना मुश्किल होता है तोहफे को या गिफ्ट को रिसीव करना, लेना. Remember when we were little, जब हम छोटे थे, our relatives used to come and visit us. हमारे रिश्तेदार हमारे पास आते थे मिलने के लिए. And all the children were very excited when the relatives came. और जब उन सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते थे जब उनके रिश्तेदार आते थे. Why were they excited? वो इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते थे, उत्साहित क्यों हो जाते थे? Remember, why were you excited when the relatives came to your house? याद करें कि आप लोग क्यों उत्साहित हो जाते थे जब रिश्तेदार आते थे. कोई Can anyone tell me? कोई बता सकता है? उनका आना इतना important नहीं होता था. Their coming was not important. Their going was very important. उनका आना इतना जरूरी नहीं होता था, लेकिन उनका जाना बहुत जरूरी होता था. Right? Because when they used to go, they used to call everyone, all the kids, and they used to give money. क्योंकि जब वो जाते थे वो सारे बच्चों को बुलाते थे और उनके हाथों में पैसे रख के जाते थे. How many of you remember that? कितनों लोगों को ये याद है? And how many? Be very honest. How many of you used to grab it? और वफादारी से बताइएगा कि कितने लोग ऐसे थे जो फटाफट उसे पकड़ लेते थे. कैसे करते थे, क्या करते थे हम लोग? What we used to do? नहीं, no, है ना? और अंदर से क्या हो रहा था? From inside what used to happen? Yes. ऊपर से हम मना करते कि नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से हाँ दे दो. We have a brother over here sitting. He's laughing very much. He knows why I'm talking about this. यहाँ एक भाई बैठे हैं जो बहुत जोर से हंस रहे हैं. हमें पता हो क्यों हंस रहे हैं. See, God told me to give him money. देखिए परमेश्वर ने मुझे बोला कि इन्हें धन देना है. ठीक है. We took that money and we were giving him.
और हमने वो धन को लिया और हम इन्हें दे रहे थे, Or what was he doing? He was doing like a small child. और वो ये उस बच्चे की तरह कर रहे थे, नहीं 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 नहीं. मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं। It is difficult to receive gifts. देखिए मुश्किल होता है तोहफों को लेना। Though we may crying out for gifts inside. देख हो सकता है हम अंदर से रो रहे हो उस तोहफे के लिए, But when someone is giving you a gift, लेकिन जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा है वो, you would always pretend that you don't want it. और आप हमेशा ये दिखाना चाहेंगे कि आपको वो नहीं चाहिए। I love gifts. मुझे तोहफे बहुत पसंद है, When my birthday is coming in June, और मेरा जन्मदिन जून में आ रहा है। there is no reaction, complete silence. किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं है, शांत हो गए सारे। What I'm telling is, gifts are important in life. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तोहफे जरूरी हैं जिंदगी में, But you can only receive gifts from people who love you. लेकिन आप सिर्फ उन्हीं लोगों से तोहफे ले सकते हैं जो आपको प्रेम करते हैं। A person, if you don't, you can't receive gifts from a stranger, can you? आप किसी अजनबी व्यक्ति से तोहफा नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं? You cannot receive gift from strangers. आप अजनबी व्यक्ति से तोहफा नहीं ले सकते। You can only receive gifts from the people you love. आप उन्हीं लोगों से गिफ्ट को ले सकते हैं जो लोग आपसे प्रेम करते हैं। And believe me, the people who love you will only give you gifts. और मेरा विश्वास मानिए, जो लोग आपको प्यार करते हैं वही आपको गिफ्ट देंगे। Giving is difficult. देना मुश्किल है, Giving is not easy. देना आसान बात नहीं है, But you need to remember what God did. लेकिन आपको इस चीज को याद रखना है कि परमेश्वर ने क्या किया। John 3:16 says, God so loved the world यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave away his only son, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that whosoever may have faith in him ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे may not perish but have eternal life. वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। You need to remember the nature of God is giving. देखिए आपको इस समझने की और याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो देना है। Come on, if you don't understand this, देखिए अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे the nature of God is giving. कि परमेश्वर का स्वभाव देना है, He gave his only and he gave his best for us. उसने अपना इकलौता और अपना सबसे अच्छा हमारे लिए दे दिया। But we need to remember this gift that he gave. If we go back to verse 8, what is he saying in Ephesians chapter 2 verse 8? If you go to that, he says, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। for by grace ye are saved through faith, and that not by of yourself, it is a gift of God. देखिए हमें वो तोहफा समझना पड़ेगा कि वो दिया क्या है। यहाँ लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का तोहफा है। This is a gift of God. Now what is the gift of God? देखिए परमेश्वर का तोहफा है। परमेश्वर का तोहफा है क्या है? What is the gift of God? परमेश्वर का गिफ्ट क्या है? Huh? Yes. Salvation. उद्धार, Salvation. उद्धार। You don't deserve this, आप इस चीज को डिजर्व नहीं करते थे, but this is a gift. लेकिन ये एक तोहफा है आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। No one of us believes this, deserves this salvation. हम कोई भी योग्य नहीं थे उद्धार के, But it is the gift. लेकिन ये एक तोहफा है। Hallelujah. Hallelujah. It is a gift of God. ये परमेश्वर का एक तोहफा है। But for whom? लेकिन किसके लिए? It says, ये कहता है, यहाँ लिखा for है, it is by grace you have been saved. विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। It is by grace you have been saved through faith. Through किस चीज के द्वारा? किसके द्वारा? विश्वास। विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा?
विश्वास। See, if your faith is not in Him, देखिए, अगर आपका विश्वास उसमें नहीं है, if your faith is not on Him आपका who विश- sacrificed His Son for you, देखिए, अगर आपका विश्वास उस पे नहीं है जिसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया आपके लिए, if you do not believe in Him, अगर आप उस पे विश्वास नहीं रखते, then this grace will not work. तब ये अनुग्रह काम नहीं करेगा। Are you getting me? क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? The grace will only be applicable, or it will only work देखिए, अनुग्रह तभी काम करेगा when you put your faith, when you put your reliance, when you put your dependency in God. जब आप अपना परमेश्वर पे सारा विश्वास, अपनी सारा निर्भरता, सारा जो भी सोच है वो आप परमेश्वर पे लगाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. When you're putting your trust, जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर करते हैं, when you're putting your dependency, जब आप अपनी निर्भरता परमेश्वर पर रखते हैं, when you're putting your belief, जब आप अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखते हैं, only then this grace gets activated. तभी ये अनुग्रह शुरू होता है, एक्टिवेट होता है। Hallelujah. हालेलुया। Turn with me to Romans chapter 4. Can we go to the slide, first slide please? Romans chapter 4 verse 13 to 25. मेरे साथ खोलिए रोमियो उसका 4:13 से 25 तक। We'll read it first. If you go to the, yeah. क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Our faith which we are talking about, जो हमारा विश्वास है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, it depends on where you're putting your faith and on whom you're putting your faith on. ये इस चीज पे निर्धारित होता है कि आप किस पे या किस चीज पे या किस मनुष्य पे या किस पे आप अपना विश्वास रख रहे हैं। If you're putting your faith in God, अगर आप परमेश्वर में अपना विश्वास रख रहे हैं, so what does it mean in putting your faith in God? तो इसका मतलब क्या होगा कि आप परमेश्वर में अपना विश्वास रख रहे हैं? When you say I believe in God, जब आप कह रहे हैं मेरा परमेश्वर पे विश्वास है, you're saying I don't believe in anything else. तब आप कह रहे हैं मेरा किसी और चीज पे विश्वास नहीं है। Believing in God परमेश्वर पे विश्वास करना is believing only in God. तो ये होता है कि परमेश्वर ही पे, केवल परमेश्वर पे विश्वास रखना। See, when you're believing in God, देखिए, जब आप परमेश्वर पे विश्वास रख रहे you हैं, don't question God. तब आप परमेश्वर से सवाल नहीं उठाते। हालेलुया। I was sharing yesterday in a meeting that see, Abraham, we have counted the children of Abraham. देखिए, कल मैं एक मीटिंग में शेयर कर रहा था कि हम सब अब्राहम के बच्चे कहलाए जाते हैं। Now Abraham, remember what Abraham did. देखिए, अब याद रखना कि अब्राहम ने क्या किया। In chapter 5 of Genesis, जेनेसिस उसके 5 चैप्टर में, उत्पत्ति के God 5, asked Abraham to kill his only son. परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा दे। Before that, God is, when he did not have any children, God used to take him out. जब उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो परमेश्वर उसे अपने साथ लेके जाते थे बाहर। And he used to say, Abraham, तो उसे कहते थे, अब्राहम look at the sky. देखो, इन सितारों को देखो, आसमान को देखो। Do you see the stars? तुम सितारों को देख रहे हो? Wow. वाह, Your descendants will be like this. तुम्हारे जो वंशज होंगे वो ऐसे होंगे। हालेलुया। Then he used to take him to the seashore. और तब वो समुद्र के किनारे उन्हें ले जाते थे And they're walking on sand. और वो रेत पे चल रहे थे। And he says, hey, do you see the sand? वो कहते थे, अब्राहम क्या तुमने इस रेत को देखा? Can you see the grain of the sand? तुमने इनके बालुओं को, इनके कणों को देखा कितने हैं?
your descendants will be like this. तुम्हारे जो आने वाले बच्चे होंगे वो इतने होंगे। And Abraham used to get excited. Wow. और अब्राहम बहुत ही उत्साहित हो जाता था कि वाह, Now Abraham is getting old. अब अब्राहम बूढ़ा हो रहा है He's getting close to 100 years. और वो 100 साल के नजदीक है, God gives him his promise. लेकिन परमेश्वर ने उसे उसका वायदा दिया है, His promised child. उसके आने वाले बच्चे, अच्छा उसका आने वाला, उसका वायदे वाला पुत्र। प्रतिज्ञा की संतान. Amen. आमीन। He gave him his promised child. उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा की संतान दी। Hallelujah. हालेलुया। He must be very excited. वो बहुत ही उत्साहित होगा। You must have seen him starting to crawl and then walk. उन्होंने उसे धीरे धीरे घुटनों पे चलते हुए देखा होगा और फिर धीरे धीरे चलते हुए देखा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Now he's becoming young. और अब वो जवान हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And God says to him, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, take your son and sacrifice him. अपने बेटे को ले जाओ और बलि चढ़ा दो। Hallelujah. हालेलुया। Kill your promise. अपने वायदे को मार दो। And did Abraham question? लेकिन क्या अब्राहम ने सवाल किया? Hallelujah. हालेलुया। He did not question. उसने कोई सवाल नहीं करा। He took his son वो अपने बेटे को ले गया and he was about to sacrifice. और वो उसकी बलि चढ़ाने पर था। Believing in God is believing that everything God tells me to do, I will do it anyways without question. परमेश्वर पे विश्वास करना ये है कि मैं जो परमेश्वर कहे वो करूंगा बिना सवाल किए। I will do whatever my God is asking me to do. मैं वो सब करूंगा जो मेरा परमेश्वर मुझे करने को कह रहा है। I will believe in God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा। I will wait upon the Lord. मैं परमेश्वर पे इंतजार करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, in Romans 4:3, if you go to Romans chapter 4, verse 3, अगर आप रोमियो उसका 4 का 3 पे जाएंगे, for what saith the scripture, Abraham believed in God, and it was counted unto him for righteousness. पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Believing in God means trusting in God's word. परमेश्वर पे विश्वास रखने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन पे आपको भरोसा रखना। You don't believe in the circumstances around you. आप अपनी परिस्थितियों पे विश्वास नहीं रखते। You don't believe in what people are telling you. आप उस चीज पे विश्वास नहीं करते कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। Remember Jesus when he was entering Jerusalem. देखिए परमेश्वर यीशु मसीह जब यरूशलेम में घुस रहे थे, आप प्रवेश कर रहे थे। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, people were shouting. What they were shouting? लोग चिल्ला रहे थे। Hosanna. क्या चिल्ला रहे थे? Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है। They were taking their clothes off and putting on the road. वो अपने कपड़े उतार के रास्ते में बिछा रहे थे। They were putting the leaves of palm trees on the road. वो खजूर के पत्तों को सड़क पे बिछा रहे थे। Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है। Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. होसन्ना 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 ऊंचे में। The same people, और वही लोग when Jesus was standing in front of Pilate, और जब पायलट के सामने परमेश्वर जब पिलातुस खड़े के थे, सामने जब वो खड़ा था, hallelujah, the same people were shouting and saying, crucify him. और वही लोग चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। Don't trust on man. देखिए लोगों पे विश्वास ना करें, Trust in God. परमेश्वर पे विश्वास करें। God will never fail you. परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा। Hallelujah. Hallelujah. It is men who will fail you. देखिए लोग हैं जो आपको हारने पे मजबूर Your करेंगे। family can fail you. आपका परिवार आपको हरा सकता है। Your close relatives may fail you. आपके निजी रिश्तेदार आपको हरा सकते Your हैं। immediate bosses can fail you. आपके विश्वासी लोग आपको हरा सकते हैं। Immediate bosses can fail you. आपके जो बॉसेस हैं वो आपको हरा सकते हैं।
but your God will never fail. लेकिन आपका परमेश्वर कभी आपको नहीं हराएगा। So trust in Him. तो उस पे विश्वास रखें, Trust in Him. उसी पे विश्वास Have रखें, faith in Him. उस पे अपना भरोसा रखें। Hallelujah. Hallelujah. Having faith in God is believing in God. Having faith in God is believing in His word. परमेश्वर पे विश्वास रखने का मतलब है परमेश्वर पे भरोसा रखना, और परमेश्वर पे विश्वास रखने का मतलब है उसके वचन पे विश्वास रखना। Hallelujah. हालेलुया। So these Jews could not understand this. देखिए ये यहूदी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। They were believing in something else. वो किसी और चीज पे विश्वास कर रहे थे। They were believing in traditions. वो ट्रेडिशंस पे परंपराओं पर विश्वास कर रहे थे. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। They were not believing in the commandments of God. वो परमेश्वर की कमांडमेंट्स पे विश्वास नहीं आज्ञाओं रखते पर थे। बात विश्वास नहीं कर रहे थे. They were believing in the traditions. वो परंपराओं पे विश्वास रख रहे थे। Now traditions will change. देखिए परंपराएं बदल जाती हैं, Traditions will always change. परंपराएं हमेशा बदलती रहती हैं। See, if you go to slide 3, if you go to slide 3, their faith was in wrong things. उनका विश्वास गलत चीजों पर था। If you go, they did not believe in what God was telling them. वो उस चीज पे विश्वास नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर उन्हें बता रहे थे। They were believing in something that was traditional. वो उन चीजों पे विश्वास कर रहे थे जो परंपरागत थी। Romans 10, 1-4. रोमियो उसका 10, 1 से 4 तक। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। Are you getting me? They're saying that they do not believe in God's righteousness, but they're believing in their own righteousness. देखिए आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास नहीं रखते, वो अपनी धार्मिकता पर विश्वास रख रहे They हैं। have created their own righteousness. उन्होंने अपनी अलग धार्मिकता बना ली है। They say, oh, if you do this and this and this, then only you love God. और उन्होंने ये चीजें बना ली है कि तुम अगर ये और ये करोगे तो ही तुम परमेश्वर के पास जा सकते हो। And there are certain churches, और कुछ ऐसे चर्चेस हैं, they say, oh, girls should not wear jeans. और वो कहते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। They say that, oh, they should not wear lipstick. और वो कहते हैं आपको लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, And they should not wear ornaments. और गहने नहीं पहनने चाहिए उन्हें। So what they're saying is, तो ये लोग जो कह रहे हैं, they're saying that everyone who's not wearing a lipstick, not wearing ornaments, not wearing certain kind of clothes, they're very good people. तो ये इस तरीके से कह रहे हैं कि जिन्होंने लिपस्टिक नहीं लगाई या गहने नहीं पहने या कुछ कपड़े नहीं पहने तो वो धर्मी कुछ लोग हैं, कपड़े नहीं, किसी तरह के कपड़े किसी नहीं। तरह के कपड़े नहीं पहने। So they are creating this righteousness which has nothing to do with the righteousness of God. तो इन्होंने इस तरीका की धार्मिकता बना ली है जिसका परमेश्वर की धार्मिकता से कोई मतलब नहीं है। See, Jesus himself is our righteousness. देखिए यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, He is our righteousness. वो हमारी धार्मिकता है। He has sacrificed himself for us. उसने अपने आप का बलिदान दे दिया हमारे लिए। Hallelujah. We are saved by faith in him. हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा बचा लिए गए हैं। We are not saved by the works that we do. हम अपने कामों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। We are saved by his finished work on the cross. हम उसके पूरे हुए काम को जो उसने क्रूस पे करा है उसके द्वारा बचाए लिए गए हैं। We are saved by Jesus Christ. हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए We हैं। are not saved by people. हम किसी आदमी के द्वारा नहीं बचाए गए। If you pray in this manner, you will be saved. If you pray in that manner, you will not be saved. No, it's not like this. Your salvation is a gift of God. देखिए अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आप बचा लिए जाएंगे या ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका उद्धार परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है। He has already given that to you. उसने आपको वो पहले से दे दिया है। You are saved by the blood
of Jesus Christ. आप परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचा लिए गए हैं, Not through your works. अपने कामों के द्वारा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. It's not your works that will, say that you're justified. It's your faith. Hallelujah. That will make you justified. आप अपने कामों के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा, आपको जज नहीं किया जाएगा, आपके विश्वास के द्वारा। See, Jews used to believe that if you're not sacrificed, if you're not circumcised, देखिए, जो यहूदी लोग विश्वास करते थे कि अगर आपका खतना नहीं हुआ है, then you're not believers of God. तब फिर आप परमेश्वर के विश्वासी लोग नहीं हैं। Is it true? क्या ऐसा है? Is it true? क्या ऐसा है? क्या सच है? We all are descendants of Abraham through faith. हम अब्राहम के वंशज हैं विश्वास के द्वारा। Was Abraham circumcised? क्या अब्राहम का खतना हुआ था? He was not sacrificed. उसका अब्राहम Oh, he नहीं, was not circumcised. उसका खतना नहीं हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। But God gave a covenant to Abraham through circumcision. लेकिन परमेश्वर ने वाचा दी थी अब्राहम को खतने के द्वारा। खतने के द्वारा। When Jesus came, जब यीशु मसीह आए, that was the covenant of blood. तो वो लहू की वाचा थी। Amen. When Amen. Jesus Christ came, जब यीशु मसीह आए, he also gave us a covenant, a new covenant. तब उसने हमें एक नई वाचा दी। He gave us the covenant of his blood. उसने अपने लहू की वाचा हमें दे दी। Hallelujah. Hallelujah. And that is more stronger, more purer than the covenant of that was given in the Old Testament. और ये सबसे मजबूत और सबसे शुद्ध वाचा है पुराने नियम से जो दी गई थी। 1 Corinthians chapter 1 verse read from verse 21 to 31. पहला कुरिन्थियों उसका 1:21 से 31 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। पढ़ते रहे। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Are you listening to me? What he's saying? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? Can we go to verse 30? 21. But for him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Arsh this morning was showing me a clip of some pastor. अर्श मुझे आज सुबह एक छोटी सी वीडियो दिखा रहे थे किसी पास्टर की। Pastor Premani, I guess. And he was making a very valid point. और वो एक जरूरी बिंदु बोल रहे थे। That he was saying that when the Holy Spirit will come, वो कह रहे थे कि जब ये पवित्र आत्मा आता है, he will make you holy. तो वो आपको पवित्र बनाएगा। Now listen to this. आप इस When चीज को सुनिएगा। you receive Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, it is the work of Holy Spirit to make you holy. तो ये पवित्र आत्मा का काम है कि आपको पवित्र बनाए। It is not your work. ये आपका काम नहीं है।
You cannot make yourself holy. आप अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। The only why you can't make yourself holy because you don't know what holiness is. आप अपने आप को पवित्र इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आपको नहीं पता पवित्रता है क्या। Word of God says, "Be holy as I am holy." देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। Amen. So we cannot be like God in our strength, can we? लेकिन देखिए हम परमेश्वर की तरह नहीं हो सकते अपनी सामर्थ्य में। क्या हम हो सकते हैं? We can never make ourselves holy. देखिए हम कभी भी अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। There are people who go into Ganges and they're taking dips to become holy. देखिए लोग हैं और जो जा रहे हैं अपने आप को गंगा में जा रहे हैं और डुबकियां लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो पवित्र हो जाएंगे. No, you cannot make yourself holy because holiness is not something that you start working from outside. Holiness is something that begins from within. देखिए पवित्रता वो नहीं है कि आप उसे बाहर से अपने आप पे शुरू कर लें। पवित्रता वो होती है जो अंदर से शुरू होती है। And the word of God over here says, और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? but of him are ye in Christ Jesus. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। Do you understand this? क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? You are in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में हैं। How many of you believe that you are in Christ Jesus? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह में हैं? If you are in Christ Jesus, अगर आप यीशु मसीह में हैं, if you are in Christ Jesus, अगर आप मसीह यीशु में हैं, what he has done, तो who उसने क्या of किया? God is made unto us wisdom. जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। He has made unto us wisdom, unto us righteousness, unto us sanctification, and unto us redemption. जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। कौन ठहरा? प्रभु यीशु मसीह। मसीह यीशु He became for us. वो हमारे लिए बन गया। He himself became for us. वो हमारे लिए खुद बन गया। Wisdom, ज्ञान, sanctification, पवित्रता and righteousness. और छुटकारा, उद्धार। Redemption. Sorry. He himself became for us. वो खुद हमारे लिए बन गया। The things that we were not able to do or we are not able to do in flesh, he himself became that for us. जो हम शरीर में होके खुद नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे लिए खुद बन के आ गया। See, when we were dying in sin, देखिए जब हम पाप में मर रहे थे, we were dying in sin. हम पाप में मर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। We had committed crimes after crimes in the sight of God. हमने एक के बाद एक गुनाह करते गए परमेश्वर की नजर में। And the penalty of sin is, और the wages of sin is death. और पाप का दंड मृत्यु है। Hallelujah. हालेलुया। I had committed that sin. मैंने वो पाप किया And Jesus came and said, no, और यीशु I मसीह will bear the punishment of his sin. लेकिन यीशु मसीह हमारे स्थान पे आ गए और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस दंड को लूंगा अपने ऊपर। हालेलुया। I was to be killed, मुझे मारा जाना चाहिए था, but he bore my sins upon him. लेकिन उसने मेरे बोझ अपने ऊपर उठा लिए। He bore my sins upon himself. उसने मेरे पापों का बोझ, मेरे पाप अपने ऊपर उठा लिए। Hallelujah. Hallelujah. And he said, I have sanctified him. और उसने कहा मैंने इससे छुटकारा दे दिया है। इसको पवित्र कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। And I have become sinner because of him. और मैं इसकी वजह से मैं पापी बन गया हूँ। Now I present myself और मैं to be अपने आप punished. को आगे लाता हूँ कि मुझे दंड दिया जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The sins you committed past week, जो पिछले हफ्ते आपने गुनाह किए, Jesus presented himself before God. यीशु मसीह ने अपने आप को उस चीज के लिए परमेश्वर के सामने ले आया। Hallelujah. हालेलुया। The sins you will commit next week, जो पाप आप अगले आने वाले हफ्ते में करेंगे, he presented himself before God. उसने अपने आप को परमेश्वर के उसके लिए सामने रख दिया। They should not die. I will die on their behalf. ये मरने नहीं चाहिए, मैं इनकी जगह मरूंगा। I will die. I will die.
मैं मरूंगा इनके लिए। Are you understanding what gift is? क्या इस तोहफे को आप समझ पा रहे Are हैं? you understanding what grace is? क्या आप उस अनुग्रह को समझ पा रहे हैं? This grace that is the gift of God. ये अनुग्रह जो परमेश्वर का तोहफा है। Hallelujah. हालेलुया। You who did not know him, आप लोग जो उसे नहीं जानते थे, but he knew you. लेकिन वो आपको जानता था। You didn't, when you were sinning, when you committed sins, you were turning your face away from him. जब आप पाप कर रहे थे, आप गलत काम कर रहे थे, आपने अपना चेहरा उसकी तरफ से घुमा लिया था, But he still loved you. लेकिन उसने आपको तब भी प्यार किया। He did not judge you. उसने आपकी तरफ पीठ नहीं करी, He did not condemn you. उसने आप पे दोष नहीं लगाया। Instead, what he said, लेकिन इसके अलावा उसने क्या किया? my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, I will save you. मैं तुझे बचाऊंगा, Trust in me. मेरे पे विश्वास रख, I don't hate you. मैं तुझसे नफरत नहीं करता, I can never hate you. मैं तुझे नफरत नहीं कर सकता कभी भी, I can never hate you. मैं कभी नहीं तुझसे नफरत कर No सकता। matter what you do. फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी तुम कर लो। I want to tell you, no one can, change God's love for you. देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के प्यार को कोई भी आपके लिए नहीं बदल सकता। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। This is the end of the story. ये कहानी यहाँ खत्म होती है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है, That's it. बस। To save you, आपको बचाने के लिए he went to cross. वो क्रूस पर गया, To save you, आपको बचाने के लिए, to save me. मुझे बचाने के लिए He went to the cross. वो क्रूस पर गया। Hallelujah. हालेलुया। Greatest love is this, ये सबसे बड़ा प्रेम है that someone sacrifices his life for you. कि वो अपनी जान आपके लिए दे दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your God loves you. आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है, He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। And it is not his fear that will separate you from your sin. और ये कोई डर नहीं है जो आपको उसके प्रेम से अलग करेगा। No. It is not the fear that will separate you from your sin. ये भय या खुदा का डर की वजह से आप उसके पाप से अलग नहीं होगे, आप उसके प्रेम की वजह से होगे। आमीन, आमीन। You know, every time हर बार when your flesh is desiring lust, जब आपका शरीर लस्ट करने की इच्छा शरीर कर की रहा है, अभिलाषा जब आपके शरीर के अंदर उमड़ेगी, तो परमेश्वर का भय आपको उस पाप से अलग नहीं करेगा। When this lust is rising inside you, the fear of God will not separate you. It is the love of God. ये परमेश्वर का प्रेम है। He loves me, I cannot do this. वो मुझे प्यार करता है, मैं नहीं कर सकता ये। He loves me. वो मुझे प्यार करता है, प्रेम करता है। He has died for me, I will not do this. वो मेरे लिए मर गया, मैं ये नहीं कर सकता। It is his love that will separate you from sin. ये उसका प्रेम है जो आपको पाप से अलग करता है। It is his love that will save you from sinning. ये उसका प्रेम है जो आपको पाप करने से बचा लेता है। Hallelujah. And in this process, the Spirit of God is strengthening you. और इस कार्य में परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देता है। Hallelujah. हालेलुया। When you put your faith in him, जब आप अपना विश्वास उस पे लगाएंगे, in him उस पे who died for you, जो आपके लिए मर गया, in him उस पे who is ready to save you, जो आपको बचाने के लिए तैयार है, in him. उस पे। Hallelujah. हालेलुया। Every time you're walking through the valley of the shadow of death, जब भी आप मौत के साए की वादी से जाएं, hallelujah, हालेलुया, his word will become lamp and light for your feet. उसका वचन आपके लिए मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला बनेगा। There's this quiet voice which will start resounding in you. और वो
मध्यम सी एक शांत सी शांत आवाज सी आवाज आपके अंदर गूंजना शुरू कर देगी, बेटा मत कर, मैंने तेरे लिए मैंने तुझसे प्यार किया, मैंने तुझसे प्रेम किया। बेटी मत कर, रुक जा, मैंने तुझसे प्रेम किया। सन, डोंट डू इट, आई लव यू। माय डॉटर, डोंट डू इट, आई लव यू। इट इज हिज लव, इट इज हिज लव दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम योर सिन। ये उसका प्रेम है जो आपको पाप से अलग करता है। हालेलुया। You know why husband and wives they cheat on each other? Do you know why? क्या आपको पता है पति पत्नी एक दूसरे को चीट क्यों करते हैं, धोखा क्यों देते हैं? Because the love is dead. क्योंकि उनका जो प्रेम है या प्यार है वो खत्म हो जाता, मर जाता है। If there is love, अगर प्यार है you cannot cheat your wife, तो you आप cannot cheat your husband. तो आप अपने पति को या पत्नी को धोखा नहीं दे सकते। In any relationship, even in relationships, और रिश्तों में भी if you love someone, कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, I'm talking about brotherly love even. मैं भाई वाले प्यार के लिए भी कह रहा हूँ If you love someone, कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं you will not cheat him. तो आप उसे धोखा नहीं देंगे। But if that love goes away, लेकिन अगर वो प्यार अगर चला जाता है then you start cheating on. तो आप उसे धोखा देना शुरू करते You हैं, start talking behind his back. तो आप उसके पीठ के पीछे बातें करनी शुरू करते हैं, Then you start calling him names. तो आप उसके नाम रखने शुरू कर देते हैं, You call him stupid, idiot, I don't know what not. आप उसे बेवकूफ, पागल, बहुत कुछ कहते हैं। But if you love him लेकिन अगर आप उसे प्रेम करते हैं and he's not there, और वो वहां पे नहीं है and someone is calling him names, और कोई उसे दूसरे नामों से बुला रहा है, you will be ready to fight for your brother who's not there. तो आप अपने भाई के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे Because you love him. क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। See, if you want to understand grace, you need to understand love. देखिए, अगर आप अनुग्रह को समझना चाहते हैं तो आपको प्रेम को समझना पड़ेगा। Without love, grace does not work. देखिए, प्रेम के बिना अनुग्रह काम नहीं करता। It was love that took Jesus, which strengthened Jesus to go on the cross. देखिए, वो प्रेम था जिसने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ दी कि वो क्रूस पे जा सके। Love for us. हमारे लिए प्रेम, He loved us. उसने हमें प्रेम किया, He loved us. उसने हमें प्रेम किया, He loves us. वो हमें प्रेम करता है And He will always love us. और वो हमें प्रेम करता रहेगा। This is the gift of God. ये परमेश्वर का तोहफा है आपके This लिए, is the gift of God. ये परमेश्वर का तोहफा है, This is the gift of God. ये परमेश्वर का गिफ्ट The है। love that motivates you. वो प्यार जो आपको मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है That my God loves me. कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। The love of God will make you obedient to His command. परमेश्वर का प्रेम आपको ओबीडिएंट बनाएगा, आज्ञाकारी बनाएगा। If you don't love God, you will never take care about His commands. अगर आप उसे प्यार नहीं करते तो आप उसकी आज्ञाएं सुनेंगे भी नहीं। John chapter 14 verse 21. John यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, जिसके पास मेरी आज्ञा जिसके है, पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वह ही मुझसे प्रेम करता है. Now, in English it says, he that had my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Only he. If you have the commandments of God, अगर आपके पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं you will only follow them if you love him. तो आप उन्हें तभी मानेंगे अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, If you don't love him, और अगर आप उसे प्रेम नहीं करते you don't care about his commandments. तो आप उसकी आज्ञाओं की परवाह नहीं मारेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you getting me? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? There is just not one particular sin that God hates. God hates sin. Sin means sin. कोई ऐसा केवल एक ही पाप नहीं है जिसे परमेश्वर नफरत करते हैं। परमेश्वर सारे पापों को, पाप है और परमेश्वर से नफरत करते हैं। God hates sin. परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। Now what is sin? अब पाप क्या है? Sin is disobeying God. अब पाप है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, That's sin. बस यही।
Disobeying God is sin. परमेश्वर का अनाज्ञाकारी पाप होना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you sinning? क्या पाप कर रहे हैं? Don't talk about the fruit of sin. आप पाप के फल के बारे में बात ना करें। There are fruits of sins. देखिए पाप के फल हैं, बहुत सारे हैं। हत्या करना, killing is sin, fruit of sin. हत्या करना पाप का फल है। Adultery is the fruit of sin. व्यभिचार पाप का sin है, पाप का फल है। Lying is the fruit of sin. झूठ बोलना पाप का फल है। Stealing, coveting is the fruit of sin. चोरी करना पाप का फल है। Lying. What is the difference between lying and murder? अब झूठ बोलने में और हत्या करने में क्या फर्क है? Which is a greater sin? बड़ा पाप कौन सा है? Murder? मारना, हत्या करना। अब ध्यान से there is one person. देखिए एक व्यक्ति है। Let's put it in a situation. हम एक परिस्थिति को बनाते हैं इधर। There was this innocent man एक इनोसेंट आदमी था who was caught and they accused him of murder. और उसे पकड़ा गया और उस पे दोष लगाया गया कि अब इसकी हत्या होगी। हत्या के लिए उस पे दोष लगाया गया। उस पर दोष लगाया गया कि यह हत्यारा है। At that time, that when the murder happened, this man was having dinner with his friend. और जिस समय वो हत्या हुई, ये व्यक्ति अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। So when police caught him, तो जब पुलिस ने इसे पकड़ा, he said, "No, I was not there. I was with my friend, having dinner with him." तो उसने कहा नहीं मैं तो वहाँ था भी नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ भोजन कर रहा था। Police came to him. पुलिस उसके पास आई, His friend, उसके दोस्त के पास। "Was your friend with you?" क्या आपका दोस्त आपके साथ था? "Yes, my friend was with me." हाँ, मेरा दोस्त मेरे साथ था। Okay. ठीक है। Then the people who murdered that man, अब वो लोग जिन्होंने उस व्यक्ति की हत्या करी थी, they came and started threatening this man who was giving the witness. वो आके उस व्यक्ति पे को डराने लग गए जो उस अपने दोस्त की गवाही दे रहा था। When he was standing in front of the judge, जब वो उस जज के सामने खड़ा हुआ, what happened? तब क्या हुआ? Judge asked him, "Was he with you?" जज ने उससे पूछा क्या ये तेरे साथ था? He said no. उसने कहा नहीं, He lied. उसने झूठ बोल दिया। So my question is, the judge ordered execution of this man. तो जज ने इस पे दोष लगाया, फांसी का दोष लगा दिया. फांसी का दोष लगा दिया। So I want to ask this question again. तो मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूँ, Which is a bigger sin? बड़ा पाप कौन सा था इसमें? Change कैसे होगी आप लोगों की statement? Why did you change your statement? Because you're still looking at the fruit. You're not looking at the root. क्योंकि आज अब भी आप फल को देख रहे हैं, आप जड़ को देख ही नहीं रहे हैं। Disobeying God is sin. परमेश्वर का अनाज्ञाकारी होना पाप है। And when you disobey God, और जब आप परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, these fruits will start appearing. तो उसके फल आने लगते हैं, फल दिखने लगते हैं। If you stay obedient to God, और अगर आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, He will strengthen you. That the fruits that come, they come of the Spirit, not of the flesh. तो वो आपको सामर्थ देता है कि जो आपके फल आए वो आत्मा के फल हों, शारीरिक फल ना हों। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There are 3 steps that I want to talk about and then I'll finish. यहाँ 3 बिंदु हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा और फिर मैं खत्म करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। The first step is तो पहला जो चरण है वो ये है, leave something. किस चीज को छोड़ दें। Leave something. Detach yourself from something. अपने आप को कुछ चीजों से दूर कर लें या हटा लें। Second step is दूसरा बिंदु, enter something. किसी चीज में या प्रवेश कर जाएं। Third step is become something. और तीसरा चरण है या तीसरा कदम है कि कुछ बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। So when you're walking with God and you are walking to know
God, और जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर को जानने में बढ़ रहे हैं आप, hallelujah, Hallelujah. God will start showing light in your dark areas. तो परमेश्वर आपको उन अंधेरे स्थान में रोशनी दिखाना शुरू करेंगे, In your dark areas. आपके उन अंधेरे स्थानों में What is wrong in you? कि आप में क्या गलतियां हैं, क्या गड़बड़ हैं। The word of God will become light. परमेश्वर का वचन है वो ज्योति बन जाएगा It will become like a mirror, और वो एक शीशे की तरह बन जाएगा, and you will start seeing yourself in that mirror. और आप अपने आप को उस शीशे में देखने लगेंगे, उस मिरर में देखने लगेंगे। And whatever that which is not of God, और जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, you will be able to see it clearly. आप उस चीज को साफ साफ देखने लगेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Leave that. उस चीज को छोड़ दें What is not of God, जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, leave it. उसे छोड़ दें, Leave it. उसे छोड़ दें, Leave it. उसे छोड़ दें। I want to talk to a few people. You are into some relationships, you may have to leave. मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा कि वो कुछ संबंध में हैं जिन्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा, Which are not right. जो सही नहीं है। God is showing you and telling you right now who that person is. परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं वो व्यक्ति है जो, God is showing you this is not the right thing. परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि ये सही नहीं है, Leave it. उसे छोड़ दें, Leave it. उसे छोड़ दें, Leave it. उसे छोड़ दें। It is not of God. ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, Enter into something और किसी चीज में प्रवेश कर जाएं that is of God. जो परमेश्वर की तरफ से है, That is of God. जो परमेश्वर की तरफ से है, Enter into something. उस चीज में प्रवेश कर जाएं। You're saying, oh, I'm not getting this, I'm not getting this, I am frustrated, I'm not having this, I'm not. You are not having this, that because of the wrong relationship that you're in. आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, और उस चीज से आपको गुस्सा है, आप चिड़चिड़े रहे। आपके पास वो चीजें इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके साथ आप हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes someone becomes a hindrance of your growth. कई बार आपके सामने कुछ लोग आपके लिए अड़चन बन जाते हैं, रुकावट बन रुकावट बन जाते आपकी हैं। उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी बढ़ोतरी में वो रुकावट बन जाते हैं. And when you remove those people of your life, hallelujah, you start a increase, you see an increase in your life. और जब आप उन लोगों को हटा देते तो आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखते हैं। Enter into a relationship. उस संबंध में आ जाएं, Enter into a new relationship. उस नए संबंध में प्रवेश कर जाएं, And this new relationship is with God. और वो नया संबंध परमेश्वर के साथ है। Enter into this relationship. आप उस संबंध में आ जाएं, God will never fail you. परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा। He will never fail you. वो आपको कभी भी नहीं हारने देगा। He will always strengthen you. वो आपको हमेशा सामर्थ He देगा, will always encourage you. वो आपको हमेशा उत्साहित करेगा, And he is बढ़ाएगा, the only one who can bless you. और वही है जो आपको आशीष दे And सकता the है। third thing is और तीसरा जो बिंदु है, become something. कुछ बन जाएं, Become something. कुछ बन जाएं, Have identity. अपनी एक पहचान बनाएं। I am what my God has made me. मैं वो हूं जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। He will exalt you. वो आपको ऊंचे पे उठाएगा, He will lift you up. वो आपको उठाएगा। You will be like a city that is built on the hill and cannot be hidden. आप उस शहर पनाह की तरह होंगे जो पहाड़ पे बनाए गए और से कोई नहीं ढा सकता, उस जो छुप नहीं सकती. जो छुप नहीं सकती। God is interested in you. परमेश्वर आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, He is interested in you. वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आप में रुचि लगता है. Your God loves you. आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, And that's why he is giving this gift which comes through faith in God. और इसीलिए उसने आपको वो तोहफा दिया है जो उस पे विश्वास रखने की है। See, this gift can only be received through faith. देखिए, विश्वास को सिर्फ विश्वास, इस इस तोहफे को तोहफे को सिर्फ सिर्फ विश्वास के द्वारा लिया जा सकता. आमीन। There is no other way. और कोई रास्ता नहीं है। You want to activate grace in your life? आप अपने जीवन में ग्रेस को डालना चाहते अनुग्रह हैं, को संचालित करना चाहते हैं. If you want to activate grace in your life, अगर आप अपने जीवन में अनुग्रह को संचालित करना चाहते हैं, you need to repent, आपको पाप क्षमा मांगनी पड़ेगी, which is leaving जो something. है किसी चीज को छोड़ना। Then you have to confess, और आपको फिर मानना पड़ेगा, अपने पाप को अंगीकार करना पड़ेगा. अंगीकार करना पड़ेगा। Repentance does not work without confession.
देखिए पाप स्वीकार तब तक नहीं होगा जब तक अंगीकार नहीं किया जाएगा। मन फिराओ तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे। Are you listening to me? Confess your sins. अपने पापों का अंगीकार करें। Hallelujah. हालेलुया। And then God will bring this transformation in your life. और तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में उस ट्रांसफॉर्मेशन को उस लेकर आएगा। परिवर्तन को लेकर आएंगे जहां पर आपको लोग देखेंगे और कहेंगे ये परमेश्वर का बेटा है, आमीन। ये परमेश्वर की बेटी है। आपको नहीं कहना पड़ेगा। You will not have to say that I am the child of God. आपको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। When you walk, when you talk, your behavior will exalt the name of God. जब आप चलेंगे, आप बात करेंगे, आपका जो व्यवहार है वो परमेश्वर के नाम को बड़ा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. People would like to surround you. है ना? उस समय लोगों को आपके चारों तरफ रहना अच्छा लगेगा। वो पता क्या कहेंगे? Oh, he has a very positive energy. Have you heard this term? Positive energy. वो कहेंगे आपके पास से बड़ी सकारात्मक एनर्जी आती है। ऊर्जा आती है। हाँ? Positive energy. सकारात्मक ऊर्जा। You know what that positive energy is? क्या आपको पता है सकारात्मक ऊर्जा है क्या? That is the Spirit of God. वो That is परमेश्वर की Holy आत्मा है। Spirit. वो Hallelujah. पवित्र आत्मा है। Hallelujah. He will Hallelujah. surround you. वो आपके साथ रहेगी। See, God has given you influence, and the moment you walk out of this hall today, He is going to increase your influence. देखिए परमेश्वर ने आपको इन्फ्लुएंस दिया है, प्रभाव दिया है। प्रभाव दिया, और जैसे ही आज आप इस चर्च से बाहर निकलेंगे परमेश्वर आपके प्रभाव को और बढ़ाने जा रहे हैं। Now listen to this. आप इसे सुने। People will come to you लोग आपके पास आएंगे, and they will ask you, वो आपसे पूछेंगे what do you have? कि आपके पास क्या है। Now, you can, the way you walk will देखिए explain who you are. देखिए जिस तरीके से आप चलते हैं वो बताएगा कि आप कौन हैं। Who would like to come and talk to such person? जो ऐसे झुक के चलेगा उसके साथ कौन बात करना चाहेगा। The one in you is greater than the one who is in the world. आपके अंदर जो है वो बड़ा है जो इस संसार में है। How you should be walking, तो आपको कैसे चलना चाहिए, how you should be talking. आपको कैसे बात करनी चाहिए। See, the enemy will try to crush you and put you down. देखिए जो शैतान है वो आपको दबाएगा और खत्म करना चाहेगा। The enemy will speak all lies to you. जो शैतान है वो आपको सारे झूठ बोलेगा। He will say there is no hope for you. वो कहेगा आपके लिए कोई आशा नहीं है। He will tell you to say that I am giving up. वो कहेगा कि आपसे बोले कि मैं हार गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When enemy is telling you this, what would your response be? जब आपको शैतान ये बोल रहा है तो आपका रिस्पॉन्स प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। See, God can never say that you should give up. देखिए परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम्हें हार माननी चाहिए। What will God tell you? परमेश्वर आपको क्या कहेंगे। If enemy is saying this, what will your response be? तो अगर आपसे शत्रु ये कह रहा है तो आपका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। I am the child of God. मैं परमेश्वर का पुत्र I हूँ। saw this very strange dream मैंने इस बड़े अजीब से सपने को देखा 2-3 days back. 2-3 दिन पहले। I was with my family, मैं अपने परिवार के साथ था and my family I left somewhere, and I am sitting in front of a witch kind of a person. और मैं मेरा परिवार कहीं और था और मैं इस व्यक्ति के सामने बैठा हूँ जो जादू टोने वाला है। एक तांत्रिक जैसा तांत्रिक दिखने वाला, अजीब गंदी सी शक्ल वाला. And in my dream, he is giving me some kind of a meat and handing it over to me. और मेरे सपने में वो मुझे किस तरीके का मांस दे रहा है, मुझे हाथ में दे रहा है वो। And he's saying that I am going to destroy. He has very crooked hands, and he says I am going to destroy you. और उसके बड़े अजीब से हाथ है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नाश करने वाला हूँ। Hallelujah. And in my dream, what I am telling, और मैं अपने सपने में क्या कह रहा हूँ। I am a child of God. I am a son of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। I dare you to do this. मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि करके दिखा। Hallelujah. हालेलुया। I am more than a conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। I dare you to do this. मैं तुझे चैलेंज करता हूँ I करके said, दिखा। I will destroy you and whatever you have. मैंने कहा कि मैं तुझे और जो कुछ तेरे पास है सब नाश कर दूंगा। Hallelujah. Because the one who lives in me is greater than the one who.
क्योंकि मैंने कहा कि जो मेरे अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार में है। See, if you know that you have the Spirit of God in you देखिए, अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, and you are saved, you are certain that you are saved. आपको पता है कि आप बचा लिए गए हैं, Nothing can change that. उस चीज को कोई नहीं बदल सकता, No one can take that away from you. उस चीज को कोई आपसे नहीं ले The सकता। love of God cannot change for you. परमेश्वर का प्रेम आपके लिए नहीं बदलेगा, He cannot stop loving you. वो आपको प्रेम करने से रुक नहीं सकता। Your salvation is granted from God. आपका उद्धार परमेश्वर की तरफ से दे दिया गया It है, is through faith in Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. Now you are believing in Jesus. देखिए, आप जब यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे You हैं, know that He loves you. आप जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है, You know that no one can take away your salvation. आप जानते हैं कि आपको कोई उद्धार नहीं ले सकता। Hallelujah. हालेलुया। Now what should it give you? It should give you confidence. तो ये आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। How should you be walking? आपको कैसे चलना है फिर? दाऊद कहता है अगर मैं मौत की, हाँ बोलो कोई पूरा करो। Even if I walk through the valley of shadow of death, I will not be afraid. दाऊद कहता है कि अगर मैं मौत के साए की वादी से भी चलूंगा तो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। Come on. Can you say that? क्या आप इसे कह सकते हैं I will not be afraid. कि मैं नहीं डरूंगा, I will not be afraid. मैं नहीं डरूंगा? Hallelujah. Which means that he is going through his law. घाटी का मतलब क्या होता है? When he is in the lowest of the low. घाटी का मतलब होता है जब वो सबसे नीची तराई में है, Valley. When he is at his lowest. जब वो बिल्कुल गहराई में है, बिल्कुल नीचे पर है, People would be against him. लोग उसके विपरीत होंगे, Enemy would be against him. जो दुश्मन है वो उसके अगेंस्ट होगा, His friends would be against him. उसके दोस्त उसके अगेंस्ट होंगे, No one is speaking positive for him. कोई भी उसके लिए सकारात्मक बातें कह ही नहीं रहा No one है, is saying that David, you are a good man. कोई भी नहीं कह रहा है कि दाऊद तू अच्छा आदमी है। He is encouraging himself. वो अपने आप को उत्साहित कर रहा है, He is saying, I will not be afraid. वो कह रहा मैं नहीं डरूंगा, I will not be afraid. मैं नहीं डरूंगा। There is sometimes you need to encourage yourself. देखिए, कई बार आपको अपने आप को उत्साहित करना होता है, Sometimes you will have to stand for yourself. कई बार आपको अपने लिए खड़ा होना होता है, Sometimes you will have to pull yourself out of that valley yourself. कई बार आपको अपने आप को उस घाटी से निकालना होता है। Hallelujah. And you can Hallelujah. only do through Christ Jesus who strengthens you. और आप सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा वो कर सकते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See, when I'm facing failures after failures after failures after failures, देखिए, जब मैंने सामना करा, एक बार हारना नहीं हारना नहीं नहीं मेरे को बोलने दो। देखिए, जब मैं हार पर हार का सामना कर रहा होता हूं, तो मैं ये जान लेता हूं कि बड़ी जीत आने वाली है। Amen. If I'm facing disappointments after disappointments after disappointments after disappointments, I know something huge is coming. Amen. Something big is coming. And that's what I want to tell you today. और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। Hallelujah. हालेलुया। Something big is coming your way. कुछ बहुत बड़ा आपके रास्ते में आने पर है, Something big is coming, Swati. कुछ बहुत बड़ा आपके लिए आने पर है। Swati, are you listening to me? क्या स्वाति आप सुन रही हैं मुझे? Can you receive that in the क्या name आप of इस Jesus? चीज को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर Lift सकते up your hands and receive that. हैं? अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें और इस चीज को ग्रहण नहीं, करें। मैं स्वाति से कह रहा हूँ. I'm just talking to Swati. You're not Swati. Hallelujah. Hallelujah. Just lift up your hands and receive it. सिर्फ स्वाति से ही कह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know what God is saying to you? आपको He's पता है saying, परमेश्वर क्या mighty कह रहा है? woman of valor. वो कहते हैं परमेश्वर की शूरवीर शूरवीर योद्धा. योद्धा। This is what God is saying. Your victory is near you. आपकी जीत आपके पास है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। No one can change that.
उस चीज को कोई नहीं बदल सकता, No one can change that. उसको कोई नहीं बदल सकता, No one has the strength to change that. किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको When बदल God दे। has decided to save you, hallelujah. या परमेश्वर ने चुन लिया है कि आपको वो बचाएगा, When God has decided to prosper you, या परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है कि वो आपको बढ़ाएगा, when God is for you, या परमेश्वर आपकी ओर है, then who can stand against तो you? आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? Hallelujah. Not even you. आप खुद भी नहीं, Hallelujah. Not even you. आप खुद भी नहीं, Not even you. आप खुद भी नहीं। Remember the people who commit suicide. How many of you know how people commit suicide? आप में से कितने लोग जानते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं? See, if someone, there was this lady who jumped from a bridge wanting to kill herself into a river. देखिए एक औरत थी जिसने अपने पुल से छलांग लगा दी अपने आप को मारने के लिए, And there was this man who was going from there. और एक व्यक्ति था जो वहां से जा रहा था, He jumped behind her to save her. और उसने उनके पीछे छलांग लगा दी उनको बचाने के लिए, And he's pulling her out. और वो उसे बाहर निकाल रहे हैं। And this woman is saying, no, I want to die, I want to die, I want to die. और ये औरत कह रही है कि नहीं मुझे मरना है, मुझे मरना है। This man says, but I want to save you. लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, This man says, और ये व्यक्ति कहता है I want to save you. मैं तुझे बचाना I चाहता will हूँ save you. और मैं तुझे बचाऊंगा। See, when God decides to save you, you cannot kill yourself. देखिए जब परमेश्वर आपको बचाने चाहते हैं तो आप अपने आप को नहीं मार सकते। When God have decided that He will speak on your behalf, no one can speak against you. जब परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है कि वो आपकी तरफ से बात करेगा तो इसे कोई नहीं बदल सकता। God says, the hands of the kings is in the hearts of the kings is in my hand. और परमेश्वर कहता है कि राजा का हृदय मेरे हाथों में है, I will turn it wherever I want. और मैं इसे मोड़ दूंगा जिधर मैं चाहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Believe in Him. मुझ पे विश्वास रखें, Believe in Him. उस पे विश्वास रखें, Believe in Him. उस पे विश्वास उस पर रखें, मत रखना, उस पर रखना. Believe in Him. उस पर विश्वास रखें, Believe in Him. उस पर विश्वास रखें, Have faith in Him. उस पे भरोसा रखें, Because you are saved by grace through faith in our Lord Jesus Christ. क्योंकि आप अनुग्रह के द्वारा बचा ले गए वो विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।